السلام علیکم ناظرین، خبر دوپہر میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ ایران کی جانب سے پہلی بار سجل میزائل کا استعمال، اسرائیل کے شہر بیر شیبا میں موجود اسپتال کی عمارت کو پہنچا نقصان، ایران کی جانب سے اسرائیل پر 20 میزائل داغے جانے کا انکشاف۔ ایران کی جانب سے جدید بیلسٹک میزائلوں کا استعمال، ایران کا امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات سے انکار۔ امریکہ آنے والے کچھ دنوں میں ایران پر کر سکتا ہے حملہ، ایران کا فوردو نیوکلیئر پلانٹ نشانے پر۔ امریکہ اسرائیل کو کسی بھی قسم کی براہ راست فوجی مدد سے دور رہے، روس کا انتباہ۔ ایران سے 110 ہندوستانی طلبہ دہلی پہنچے، وزارت خارجہ کے سیکریٹری نے کیا استقبال۔ پنجاب، مغربی بنگال، گجرات اور کیرلا میں 5 اسمبلی سیٹوں پر ضمنی انتخابات کے لیے آج ہو رہی ہے ووٹنگ، دوپہر 1 بجے تک 25% سے زیادہ ووٹنگ۔ حیدرآباد سے تروپتی جانے والی اسپائس جیٹ کی پرواز تکنیکی خرابی کے باعث واپس لوٹ آئی۔ اور مغل پورہ کے علاقے درگاہ بھولے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی عمارت میں آتش زدگی۔ وزارت خارجہ کے سیکریٹری کیرتی ودھان سنگھ نے ایران سے واپس آنے والے 110 ہندوستانی طلبہ کا استقبال کیا ہے۔ اسرائیل کے فضائی حملوں کے درمیان ایران میں کشیدگی بڑھنے کے بعد ہندوستان نے اپنے شہریوں کی محفوظ واپسی کو یقینی بنانے کے لیے آپریشن سندھو شروع کیا تھا۔ 17 جون کو 110 ہندوستانی طلبہ، جن کا تعلق بنیادی طور پر شمالی ایران سے تھا، کو کامیابی کے ساتھ سرحد پار ارمینیا لے جایا گیا۔ وزارت خارجہ نے آج اس بات کی تصدیق کی۔ 110 ہندوستانی طلبہ سرحد عبور کر کے ارمینیا میں داخل ہوئے۔ وزارت خارجہ کے مطابق 110 طلبہ کے گروپ کو ایران اور ارمینیا دونوں میں ہندوستانی مشن کی نگرانی میں شمالی ایران کے شہر ارمیا سے نکالا گیا۔ انہیں ارمینیا کے دارالحکومت ایروان پہنچایا گیا، جہاں سے وہ ہندوستانی حکام کی طرف سے تربیت دی گئی خصوصی پرواز میں سوار ہوئے اور دہلی پہنچے۔ آر جے ڈی لیڈر و رکن پارلیمان منوج جھا نے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کا اپنی ذہنی اور نظریاتی حالات پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اگر وہ میں پاکستان سے پیار کرتا ہوں کہتے ہیں تو وہ کسی بھی چیز کے لیے میں پیار کرتا ہوں کہہ سکتے ہیں، جس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ نے تقریباً 15ویں یا 16ویں بار اپنا بیان دہرایا۔ پی ایم مودی کی قیادت میں پارلیمنٹ میں تمام پہلوؤں پر بحث ہونی چاہیے اور یہ پیغام ہے کہ پاکستان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایران سے ہندوستانی طلبہ کی واپسی پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہندوستان کی تاریخ رہی ہے کہ جب بھی ہمارے شہری کسی بھی جنگی علاقے میں پھنسے ہوئے ہیں تو حکومت کی ذمہ داری رہی ہے کہ انہیں بحفاظت باہر نکالے، اور یہ آج بھی جاری ہے۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر اور سراہنیہ پہل ہے۔ اس دیش کا اتہاس رہا ہے کہ دنیا کے الگ الگ حصوں میں جب بھارتیہ ناگرک یدھ جیسے پرستھتی میں پھنسے تو ان کو ایویکویٹ کرانا ایک میچور اسٹیٹ، ایک پریپکو ڈیموکریسی کے روپ میں ہم نے ہمیشہ کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو کمٹمنٹ اپنے ناگرک کے پرتی ہے، چاہے کہیں ہو،
वो कमिटमेंट जारी है और वो जारी रहेगा। कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। लेकिन उन्होंने इस बात को दोहराया फिर से कि हमने ही वार्ड को रुकवाया। देखिए, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, मतलब अब यही लगता है कि इस व्यक्ति जिनका नाम ट्रम्प साहब है, अमेरिकन प्रेसिडेंट, उनकी मानसिक वैचारिक परिस्थिति उनके वश में भी नहीं है। न जाने क्या सोच के बोलते हैं। हालांकि अगर वो कहते हैं आई लव पाकिस्तान, तो वो आई लव तो किसी चीज के लिए कह सकते हैं। इट डजंट कैरी मच मीनिंग। मेरे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि मिस्री साहब ने ब्रीफिंग की, कॉन्वर्सेशन की, लेकिन ठीक उसके बाद व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग अलग दिशा में जा रही है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये 15वां 16वां बयान है डोनाल्ड ट्रंप का। हमारा मानना है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संसद में हर पहलू पे चर्चा हो और एक मैसेज जाए राष्ट्र की ओर से, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। हमने मध्यस्थता न अतीत में स्वीकारी, न वर्तमान और न भविष्य, लेकिन ये होगा कहां? ये ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे नहीं होगा। ये हमें संसद के माध्यम से एक साझा संदेश हर पहलू पे विमर्श करते हुए देना है। चार रियासतों गुजरात, केरला, मगरबी बंगाल और पंजाब की 5 असेंबली सीटों पर आज ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, जबकि गुजरात में वैसावार और कड़ी सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 3 दीगर रियासतों में एक एक सीट पर वोटिंग हो रही है। केरला में नीलम्बूर, मगरबी बंगाल में कालीगंज और पंजाब में मगरबी लुधियाना में वोटिंग हो रही है। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज का ऐलान 23 जून को किया जाएगा। दोपहर 1 बजे तक वोटिंग 25% से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। बीजेपी का मकसद गुजरात में एक पुराना गढ़ दोबारा हासिल करना है, लेकिन वो पंजाब में एक और सीट जीतने की भी उम्मीद कर रही है, जहां आम आदमी पार्टी मुसलसल आगे बढ़ रही है। गुजरात के जूनागढ़ जिले का वैसावादार इस वक्त खाली हुआ जब आपके मौजूदा रुकन असेंबली भूपेंद्र भियानी हुक्मरान बीजेपी में शामिल हो गए थे। लुधियाना में ये सीट आम आदमी पार्टी के मौजूदा एमएलए गुरप्रीत बसी गोगी की मौत के बाद खाली हुई थी। दूसरी जानिब केरला और मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और सीपीआईएम ज़िमनी इंतखाबात को अपनी अपनी रियासतों में अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश खेमा के तौर पर देख रहे हैं। 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया के तैयारा हादसे में अपनी जान की बाजी हारने वाले साबिक सीएम विजय रूपानी की याद में एक दुआया इज्तिमा का इनेकाद किया गया। ये इनेकाद गुजरात के गांधीनगर में किया गया था। बारह जून को अहमदाबाद में गिरकर तबाह होने वाले एयर इंडिया के तैयारे के शरीक पायलट क्लाइव कुंदर की मैयत को मुंबई में उनके घर लाया गया। इस मौके पर गम का माहौल देखा गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जिले में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इंहदामी मुहिम शुरू की है। मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की सेक्रेटरी अंजू लता ने कहा है कि हमने अप्रैल में रोस्टर बनाया था और ये जुलाई तक जारी रहेगा। ये डिमोलिशन हम हफ्ते में 4 से 3 दिन चलाया जा रहे हैं। हम उन्हें खुद भी तजाविज़ात हटाने का वक्त देते हैं और हम इसके बाद कार्रवाई करते हैं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम के द्वारा लगातार जो अवैध निर्माण है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज जोन 3 में कार्रवाई हुई है और जोन 1 में भी जो अवैध निर्माण है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। हाँ जी, ये अप्रैल से ही हमने रोस्टर बना दिया था, जुलाई तक का रोस्टर बना हुआ है।
सप्ताह में कम से कम 3 से 4 दिन डिमोलिशन चलता है अलग अलग जोन्स में। हमारे प्राधिकरण में प्रवर्तन के 4 जोन हैं और चारों जोन ने अपना एक रोस्टर बना के सबमिट किया हुआ उपाध्यक्ष महोदय को। उसी के अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट और पुलिस की उपस्थिति में जो अवैध निर्माण है, जिनका निर्माण प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत करा के नहीं किया गया है, ऐसे निर्माणों के खिलाफ सक्षम प्राधिकारी के स्तर से ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए जाते हैं और जिसमें पर्याप्त समय 1 माह का जो होता है अपील का समय या फिर स्वयं हटाने का समय, उसके उपरांत भी अगर जो प्रतिवादी है उसके द्वारा निर्माण आदि नहीं हटाया जाता है या फिर कहीं सक्षम स्तर पर अपील इत्यादि के माध्यम से वो आदेश खारिज नहीं हुआ जाता है, तो ऐसे अवैध निर्माणों के विरुद्ध मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करता है। गुजरात के कई अजला में मूसलाधार बारिश के बायस आम जिंदगी मफलूज नजर आ रही है। गांधीनगर में भी बारिश ने आम जिंदगी को मफलूज किया है। नशीबी इलाकों में पानी भर गया है। मौजूदा IMD की पेशन गोई के मुताबिक 25 जून तक दारुल हुकूमत में बारिश और गरज चमक के साथ बारिश जारी रह सकती है। हिंदुस्तानी फौज की राष्ट्रीय राइफल्स ने मजबूत सिक्योरिटी ग्रिड को यकीनी बनाने और अमन बरकरार रखने के लिए भद्रवाह के घने जंगलात और पहाड़ी इलाकों में गश्त तेज कर दी है। ये इक़दाम जम्मू कश्मीर के बड़े सयाहती मुकामात के दोबारा खुलने के बाद सामने आया है। फौज खित्ते में रिहायशियों और सयाहों की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। एक अफसोसनाक वाक़े में हैदराबाद में 23 साला रैपिडो सवार को वहशियाना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये वाक़या लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। हमले की वजह से मुतासरा शख्स, जिसकी शिनाख्त P अमरेश के नाम से हुई है, मौके पे ही दम तोड़ गया। ज़राए के मुताबिक अमरेश और इसके दोस्त M रामचंद्र रेलवे स्टेशन के करीब एक ताड़ी की दुकान पर गए थे। कुछ देर बाद 2 ख़वातीन ने अमरेश पर इल्ज़ाम लगाया कि उनके मना करने के बावजूद खातून रिश्तेदार को इन्होंने मोटरसाइकिल पर सवार कर लिया। सूरत हाल उस वक्त पुरतशद्दुद हो गई जब ख़वातीन ने 2 मर्दों को जाए वक़्फ़ पर बुलाया और यहाँ हुजूम जमा हुआ, जिसने अमरेश पर हमला कर दिया। अमरेश मौके पे ही दम तोड़ गया। हैदराबाद से तिरुपति जाने वाली स्पाइस जेट की परवाज जुमेरात को तकनीकी खराबी की वजह से हैदराबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के 10 मिनट बाद वापस लौट आई। फ्लाइट SG 2696 जिसमें 80 मुसाफिर सवार थे, सुबह 6:10 पर राजीव गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे शमशाबाद से तिरुपति के लिए रवाना हुई थी। ताहम चंद मिनट बाद पायलट को तकनीकी खराबी का पता चला। इन्होंने फौरी तौर पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राबिता किया और एयरपोर्ट वापस जाने की इजाज़त तलब की। परवाज़ राजीव गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर बाहिफाजत वापस उतर आई। वाज़ेह है कि एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हिंदुस्तान में इंजीनियर्स की कमी के बायस तैयारों में फ़नी खराबी पैदा हो रही है, क्योंकि इनकी रूटीन चेकअप मुमकिन नहीं रही, जिसके बायस तैयारों में फ़नी खराबी पेश आ रही है। शिया सिविल काउंसिल ऑफ जस्टिस चाहती है कि आइंदा माह मुहर्रम में बीबी का अलम का जुलूस हैदराबाद के नवाब रौनक यार खान के तहत मुनक्किद किया जाए। इजाज़त लेने के लिए इन्होंने वक्फ बोर्ड के CEO को ख़त लिखा है। ख़त में कहा गया है कि रौनक यार खान को निज़ाम अव्वल ता 6वें निज़ाम के ख़ानदान के अफराद ने तस्लीम किया था। वाज़ेह है कि निज़ाम अव्वल था 6वें निज़ाम के मुसद्दिक़ा शाही ख़ानदान के अफराद 7वें निज़ाम के ट्रस्ट के तहत दर्ज हैं, जिसका नाम साहिबजादगान ऑफ सरफ खास ट्रस्ट है। ख़त में मज़ीद कहा गया है कि फहरिस्त में शामिल 4000 से ज़ायद अराकीन में से बहुत से लोगों ने रौनक यार खान को आसिफ जाही ख़ानदान का
नवा निज़ाम तस्लीम किया है। इसके पेश नज़र इन्होंने ताकीद की कि आइंदा माह मुहर्रम में हैदराबाद के नवे निज़ाम के तहत बीबी का अलम का जुलूस निकाला जाए। इक्कीस मई से 27 जून तक मरकजी हुकूमत की तरफ से शुरू करदा योगा शेड्यूल के एक हिस्से के तौर पर निज़ामिया तिब्बी कॉलेज ने पूरी मुद्दत में बाकायदा योगा सेशन मुनक्किद किया जा रहा है। यह प्रोग्राम 21 जून को बैनुल अक़वामी योगा डे के तौर पर मनाया जाता है। इस ज़िम्न में चारमीरा रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने मीडिया से बातचीत की। इन्होंने कहा है कि तिब्बी कॉलेज की तामीर व तरमीम के लिए सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर तेलंगाना हुकूमत ने फंड्स में इजाफा किया है, मगर काम सुस्त रवि का शिकार है। सत्ताईस मई से जो योगा के प्रोग्राम्स हो रहे थे, इसका क्लोजिंग सेरेमनी 21 जून योगा डे के दिन जो मनाया जा रहा है गच्चीबौली स्टेडियम में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से ये प्रोग्राम दिया गया था। इसमें निज़ामिया तिब्बी कॉलेज हैदराबाद के तमाम प्रोफेसर्स, तमाम वहाँ के डॉक्टर्स, जो स्टूडेंट्स हैं, तमाम लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, जिन्होंने आज यहाँ पर आकर उससे मुलाकात कर जिस तरह से इन्होंने इतने दिन का जो प्रोग्राम किया है उसके बारे में इन्होंने बताया है, और वो प्रोग्राम इख्तिताम पर पहुँच रहा है। इसके लिए आज मीडिया के लिए उन्होंने यहाँ पर आया और मुझसे भी बताया। मैं इस काम से इनके बहुत ही मुतासिर हुआ। इस अंदाज में इन लोगों ने जो किया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से जो दिया गया था प्रोग्राम, इसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने इसको अंजाम दिया है। जो निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर ख़ास तौर से सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अल्लाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP और हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर हुकूमत ने पहले इसको 52 करोड़ रुपए सैंक्शन किया था, लेकिन कुछ कमी इसमें हो रही थी, काम पूरे नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से हम लोगों ने फिर से हबीब मिल्लत ने कोशिश की और 30 करोड़ रुपए और हुकूमत से हमने सैंक्शन करवाया। तकरीबन 80-82 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं, तो काम हो रहा है, लेकिन काम की रफ्तार बहुत ही सुस्त है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऑफिस में जो दुश्वारियाँ आ रहे हैं हर काम के लिए, हमको हर मामले के लिए हमको बार बार हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ सेक्रेटरी और डायरेक्टर आयुष को हमको बोलना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ही सुस्त रफ्तार से लोग काम कर रहे हैं। फिर एक बार मैं जाकर हेल्थ मिनिस्टर से मिलूँगा और हेल्थ सेक्रेटरी से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलूँगा। मिलकर मैं उनसे कहूँगा कि काम को तेज़ रफ्तार में लेके आए, जो भी आपका प्रोसीजर है काम करने का, उसको जल्द से जल्द करके उसको काम ख़त्म करना है। मुगलपुरा के इलाके में दरगाह भोले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के करीबी रिहायशी इमारत में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। आग एक रिहायशी इमारत के ग्राउंड फ्लोर के गोदाम में लगी, जो कार्टन रखने के लिए इस्तेमाल होती थी। फायर फाइटर्स ने फौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए 9 अफराद को अहाते से बचाया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर DFO भी ऑपरेशन की निगरानी के लिए जाए वक़ूफ़ पर पहुँच गए हैं। మొగల్పుర अकबर फंक्शन हॉल के बाजू के ग्राउंड बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर में क्लटर में कार्डबोर्ड्स का स्टोरेज रखे हुआ है। इट इज़ अनऑथराइज्ड स्टोरेज है। इसमें फायर हुआ है। 9:50 को हमारे को मुगलपुरा फायर स्टेशन को कॉल करें। हमारा मुगलपुरा व्हीकल इमीडिएटली टर्न होकर राकेश पूरा ये काम में आग पूरा बुझा दिया। उसके साथ और हमारा बॉलीवुड से वाटर बोजर भी आया और रोबोट भी आया, पूरा एक्टिविस्ट कर गए।
اس میں ग्राउंड फ्लोर में शटर्स है, उसके ऊपर पूरा रेजिडेंशियल एरिया है। रेजिडेंशियल में पूरा कुछ जनों को 8-9 नंबर्स को बाद फ्लोर को सेफली जा दिया। अब तो पूरा फटा हो गया होने की वजह क्या? पानी पड़ रहा, उसमें क्या है क्या अभी देखो। अंडर इट इज अंडर बहुत ज्यादा स्टॉक था क्या वो? स्मोक, पहले तो स्मोक ज़्यादा है जी। हम आने के बाद में पूरा पानी में अभी टोटली कंट्रोल है फायर। पूरा कंट्रोल हो गया। अभी तब भी तो अच्छा हुआ पूरा, वो कार्डबोर्ड पूरा बाहर निकाल दिया। कितने फायर ब्रिगेड गोलीगोड़ा और पहले मोगलपुरा आया, उसके बाद में गोलीगुड़ा आया। ईरान ने इसराइल के खिलाफ पहली बार इंतहाई हेवी सिज्जल मिसाइल का इस्तेमाल किया। सिज्जल एक 2 मरहलों पर मुश्तमिल ठोस ईंधन से चलने वाला मिसाइल है जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है, जो इसराइल और यूरोप के कुछ हिस्सों को निशाना बनाने के काबिल है। दूसरी जानिब इसराइली वजारत खारजा ने अपने एक ट्वीट में ये बात मानी है कि जुमेरात की सुबह ईरान की जानिब से बेशेबा में इसराइली अस्पताल को टारगेट किया गया, जिसमें अस्पताल की इमारत को नुकसान पहुंचा है। इसराइली वजारत खारजा ने कहा है कि ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह कामनाई ने ऐलान किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा और बैरूनी दबाव के सामने वो नहीं झुकेंगे। ईरान और इसराइल के दरमियान झड़पों के 7वें दिन तेहरान, अस्फहान, अलबर्जा और दारुल हुकूमत के करीब गरज के इलाके में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। दूसरी जानिब तुल अबीब, हैफा और बैतुल मक़दस में भी धमाके हुए हैं, जबकि ईरान की तरफ से तकरीबन 20 मिसाइल दागे गए हैं। ईरान ने काबिज इसराइल के खिलाफ अपने सख्त और वाज़ेह मौक़िफ़ को अमली जामा पहनाते हुए एक और शदीद हमला किया, जिसमें जदीद बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए सहीयूनी दुश्मन पर कहर बनकर टूटा गया। ये हमला इन सहीयूनी जारहियतों का जवाब था जिन्होंने फ़लस्तीनियों समेत पूरे खित्ते को आतिश व आहन में झोंक रखा है। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक तेहरान ने बुध को काबिज इसराइल की जानिब से नई मिसाइलों की बारिश की, जिनमें फातेह कासिम के जदीद तरीन आवाज़ से भी ज़्यादा रफ्तार रखने वाली मिसाइल शामिल हैं। अमेरिकी ज़राए अबलाग के मुताबिक आला अमेरिकी हुक्काम आइंदा चंद रोज़ में ईरान पर मुमकिना हमले की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। खबररसा इदारे ब्लूमबर्ग ने बाखबर ज़राए के हवाले से जुमेरात को इत्तला दी है कि सूरत हाल मुसलसल बदल रही है और आइंदा हफ्ते के आगाज़ में हमले का इम्कान मौजूद है। इससे कबल ABC न्यूज़ ने एक ज़राए के हवाले से बताया था कि मुमकिना अमेरिकी हमला फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर एक ही वार नहीं बल्कि कई हमलों पर मुश्तमिल हो सकता है। ज़राए के मुताबिक साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस हमले पर गौर कर रहे हैं और इसकी तैयारी भी जारी है। दूसरी जानिब रूस ने अमेरिका को मुतनब्बा किया है कि वो इसराइल को किसी भी किस्म की बरह-रास्त फ़ौजी इमदाद फराहम ना करे, इसलिए कि ऐसा इक़दाम मशरिक़ वस्ता के इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाएगा। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने आज बुध के रोज़ एक बयान में कहा है कि हम अमेरिका को ख़बरदार करते हैं कि वो इसराइल को बरह-रास्त फ़ौजी इमदाद फराहम ना करे, हत्ता कि इस बारे में सोचे भी ना। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा सरगाई लारोफ ने खबरदार किया है कि अमेरिका की जानिब से इसराइल को बरह-रास्त फ़ौजी इमदाद मुमकिना तौर पर मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को बुनियादी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार कर सकती है। गाज़ा में अब जान लेने के लिए रॉकेटों की ज़रूरत नहीं, यहाँ मौत का सामान पानी बन चुका है। पानी जो कभी ज़िंदगी की अलामत था, अब ज़िंदगी का गला घोंटने वाला खामोश हथियार बन चुका है। ये इलाका जो कई माह से मुसलसल धमाकों, फ़िज़ा में गूंजती चीखों और आंसुओं के दरमियान जी रहा है, वहाँ अब इंसानी बहरान मज़ीद बढ़ गया है। बिजली है न खुराक और सबसे हौलनाक हकीकत यह है कि पानी भी अब मैसर नहीं।
یہ محض ایک معمولی بحران یا وسائل کی کمی نہیں، یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ پیاز کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی ایک وحشیانہ کوشش ہے، یہ ایک خاموش جنگ ہے جو زندگی کے ہر گوشے پر حملہ آور ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ ایران کی جانب سے پہلی بار سجل میزائل کا استعمال، اسرائیل کے شہر بیر شیبا میں موجود اسپتال کی عمارت کو پہنچا نقصان، ایران کی جانب سے اسرائیل پر 20 میزائل داغے جانے کا انکشاف۔ ایران کی جانب سے جدید بیلسٹک میزائلوں کا استعمال، ایران کا امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات سے ایک بار پھر انکار۔ امریکہ آنے والے کچھ دنوں میں ایران پر کر سکتا ہے حملہ، ایران کا فورڈو نیوکلیئر پلانٹ نشانے پر۔ امریکہ اسرائیل کو کسی بھی قسم کی براہ راست فوجی مدد سے دور رہے، روس کا انتباہ۔ ایران سے 110 ہندوستانی طلباء دہلی پہنچے، وزارت خارجہ کے سیکرٹری نے کیا استقبال۔ پنجاب، مغربی بنگال، گجرات اور کیرلا میں 5 اسمبلی سیٹوں پر ضمنی انتخابات کے لیے ووٹنگ، دوپہر 1 بجے تک 25% سے زیادہ ہوئی ووٹنگ۔ حیدرآباد سے تروپتی جانے والی اسپائس جیٹ کی پرواز تکنیکی خرابی کے باعث واپس لوٹ آئی۔ اور مغل پورہ کے علاقے درگاہ بھولے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی عمارت میں آتش زدگی کا واقعہ۔ اسی کے ساتھ خبر دوپہر اختتام کو پہنچی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔